Good day students and welcome to Education Hub. This is a series of lectures which is going on in our channel that includes the practice of biology. Till now we have covered genetics, then we covered in the last class we covered life processes, we discussed the important questions that are going to come in the exams. So what you need to do before starting the class: first, if you haven't watched all the videos, do watch them. They are present in the channel for free of cost. The only thing which we ask you to do is subscribe the channel, just press the notification button and share the video. That's all you need to do for these lectures, and stay tuned with us for such amazing videos, right? So let's start with the chapter. So today our discussion will be on the chapter why do organisms reproduce or how do organisms reproduce. Organisms कैसे reproduce करते हैं, ठीक है? This chapter is very important chapter as it covers so many aspects of biology, or one of the most vital processes that species must do in order to survive in earth, because we know all the life processes are essential for an organism to survive, but for a species to survive and to continue its number through generation after generation, the only process that helps them to achieve this is reproduction. Then we saw that reproduction has two types, sexual, asexual. Then we saw the events that take place from gametogenesis to gamete transfer to the zygote formation to the embryogenesis, then to the gestation, to the parturition, to the lactation. Then we also saw how we can actually prevent pregnancy by seeing some contraceptive devices which we studied, right? If you haven't, you can see the video, it is also present in the channel. Now, today we are going to discuss some of the important questions. So let's start the discussion. The first question, which I believe is one of the very important topics also for this chapter, is first, define pollination, explain its types, list two agents, and how does suitable pollination leads to fertilization. देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो तो ध्यान से. प्लांट रिप्रोडक्शन है, उसका जो पूरा पैराग्राफ है, तुमसे लिटरली ये क्वेश्चन में पूरा पैराग्राफ पूछा है. फ्रॉम पॉलिनेशन डेफिनेशन टू द पॉलिनेशन टाइप्स टू द पॉलिनेशन एजेंट्स टू how suitable pollination can lead to fertilization, everything has been asked here. एक और इसका एक प्रो टिप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ब्रेक द क्वेश्चन इनटू द टाइप्स. कितने क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर? 1 2 3 4. हर आंसर का जब एक एक पार्ट का आंसर करोगे, कीप चेंजिंग द पैराग्राफ. लाइक एक लिखें पैराग्राफ चेंज, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, राइट? और जब भी आंसर करोगे, तो सपोज पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिनेशन, तो लिखना पॉलिनेशन फिर डिफाइन करना. सेकंड है क्या? टाइप्स. यहाँ पे जब सेकंड चालू करोगे लिखना टाइप्स, फिर आंसर करना. फिर उसके बाद एजेंट्स, 2 एजेंट्स, आंसर लिखना. फिर हाउ डज, तो सुटेबल पॉलिनेशन लीड्स टू फलाना फलाना, एंड देन यू कैन हैव द आंसर, राइट द आंसर. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. स्टॉप. देखो इधर आंसर कैसे करना था. पहला क्वेश्चन था डिफाइन पॉलिनेशन. सिंपल सा, बहुत आसान सरल शब्दों में, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल. इसमें हम क्या अलग जोड़े? नॉर्मल बच्चे क्या लिखेंगे? एंथर टू स्टिग्मा. आपको क्या लिखना है? एंथर किसका पार्ट है? स्टामेन का. मतलब एग्जामिनर को ये भी पता चल गया कि तुमको इसके साथ साथ ये भी पता है कि किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है. जब कार्पल मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को ये पता चल गया कि तुमको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पता है, ठीक है? दूसरा सवाल क्या है? व्हाट आर द टाइप्स? 2 टाइप होते हैं जनरली, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन के फिर 2 टाइप होते हैं जो तुमको पता है, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी. और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? जीनोगैमी. ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी क्या? ऑटोगैमी कुछ नहीं है,
when the pollen gets transferred from the anther to the stigma of the same flower, it is known as autogamy. When the anther gets transferred from the anther to the stigma of different flower of the same plant, it is geitonogamy. But when the pollen gets transferred from the anther to the stigma of the different flowers of the different plants, it is known as xenogamy, और इन आसान सरल शब्दों में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. 2 एजेंट्स लिखना, 2 एजेंट कुछ भी हो सकता है, आपको बहुत सारे पता होंगे. एयर हो सकता है, विंड हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, यू कैन राइट. और अगर आपको थोड़ा और आंसर चाहिए, नंबर चाहिए, तो लिख सकते हो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, मैलेकोफिली, ऑर्थिनोफिली, कुछ भी लिख दो, यू कैन हैव द आंसर. उसके बाद जो क्वेश्चन देखो, यहाँ तक इट वॉज वेरी इजी, इट वॉज लाइक आइसिंग ऑन द केक, राइट. इट वॉज नथिंग आउट ऑफ इट. बट लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम, एंड इफ इट कम्स बच्चे का पूरा नॉलेज चेक कर लेगा. क्या बोला समझ में आ रहा है? ये लास्ट पार्ट बोलना क्या चाह रहा है? हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन, पहले तो आधा बच्चों को यही समझ में नहीं आएगा कि सुटेबल और अनसुटेबल पॉलिनेशन क्या होता है. समझो जरा सा. देखो, अगर मान लो यहाँ पे स्टिग्मा है, ठीक है, क्या जरूरी है कि इसमें सिर्फ इसी प्लांट का या फिर इसी स्पीशी का पॉलन आके गिर रहा है? जरूरी तो नहीं है, कोई भी आगे गिर सकता है. क्या ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा? अगर सिर्फ करेक्ट टाइप ऑफ पॉलन गिरे, दैट इज द सुटेबल पॉलिनेशन. बट अगर इनकरेक्ट टाइप ऑफ पॉलन उसमें गिर रहा है, दैट इज अनसुटेबल पॉलिनेशन. दोनों में फर्क क्या है? इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज तुम लोग बारात का स्वागत करने के लिए दरवाजे पे खड़े हो, राइट, एंड इफ द करेक्ट बारातीज कम, तुम क्या करोगे? उसको रसगुल्ला खिलाओगी, पानी पिलाओगी, उसको आइए आइए स्वागत है, अंदर खाना लगा हुआ है. और अगर दूसरा आ गया तो भागो, ये तुम्हारा शादी थोड़ी है. सेम हाल यहाँ पे है. अगर करेक्ट टाइप ऑफ पॉलन यहाँ आके गिर रहा है तो क्या होगा? जो स्टिग्मा है दैट विल प्रोवाइड दैट पॉलन ग्रेन विथ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मिलने से क्या होगा? उसमें पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा. पॉलन ट्यूब डेवलप करके क्या होगा? पॉलन ट्यूब कहाँ घुसेगा? यहाँ जाके ओव्यूल में, राइट. पॉलन ट्यूब में क्या होगा? 2 मेल गैमेट. मेल गैमेट फिर क्या करेगा? एक मेल गैमेट किससे? एग के साथ फ्यूज करेगा, जो हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी. और ये क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट. दूसरा मेल गैमेट जो है जाके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर देगा. क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे जाके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म. और जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो. ठीक है. उसके बाद जो ओव्यूल है दैट विल फॉर्म व्हाट? ओव्यूल विल फॉर्म सीड. ठीक है. और जो ओवरी है तुम्हारा वो क्या बनाएगा? फ्रूट. सो दीज आर द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस if there is a suitable pollination taking place in the plant. अब बताओ, इसके बाद इस पूरे सेक्शन में जो एनसीईआरटी का तुम्हारा था और कुछ बच गया? एक क्वेश्चन पूछा है, और अगर कुछ एग्जाम में जो सेट किया खड़ूस है तो उसको तुमको 3 नंबर पे भी ये क्वेश्चन दे सकता है. मतलब 3 नंबर में तुमसे पूरा एक पैराग्राफ पूछ लिया. सो बी रेडी फॉर दैट. लिखना कुछ लिख लो इसमें से, कुछ भी लिखना. वैसे हम लिखने तो छोड़े नहीं, मतलब लिखे ही नहीं कुछ. अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. शुरुआत हमारी अच्छी है, आगे कुछ और भी बेहतरीन प्रश्न है, देखते हैं उनके बारे में पढ़ते हुए. देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, बट हम तुमसे पूछना चाह रहे होंगे क्यों. रीज़न है, देखो हम लिख नहीं रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं. ठीक है, हमको बताना. नेम द मेथड बाय विच स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूसेस अंडर फेवरेबल कंडीशन. अंडर फेवरेबल कंडीशन, is this method sexual or asexual? give reason. give reason क्वेश्चन में नहीं था, हम ऐड किए हैं. बोलना है कि स्पाइरोगायरा नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन में कैसे रिप्रोड्यूस करता है, जो ये मेथड यूज करता है, क्या वो सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है? रीजन के सहित बताइए. क्या लिख सकती हो तो लिखो इसका आंसर. क्योंकि देखो, एक बात तुम लोग आज हम बता दे रहे हैं, ये मेरे सामने लिख लो कि अगर तुमसे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछेगा ना, कभी भी तुमसे ये डिफाइन नहीं करने बोलेगा कि स्पोरुलेशन क्या है. तुमसे ये जरूर पूछ सकता है कि ये जो फंगी होता है जो रिप्रोड्यूस करता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं और वो क्या होता है, और वो सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है. मतलब वो एक क्वेश्चन से तुमसे एक तीर से 2 शिकार. कैसे? पहले तो तुमको आइडेंटिफाई करने पड़े. एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे राइजोपस, तो तुमको पहले पता होना चाहिए राइजोपस कैसे रिप्रोड्यूस करता है, स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन. इस तरह से क्वेश्चन आएगा, घूमेगा, तो उसके लिए तैयार रहना.
देखो ये जो टर्म था फेवरेबल, वो एक्चुअली तुम लोग को थोड़ा डिसीव करने के लिए डाला गया था। फेवरेबल कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में, और एनसीईआरटी में साफ सरल शब्दों में लिखा हुआ है। फ्रैगमेंटेशन का अगर तुम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है, अंडर नॉर्मल कंडीशन स्पाइरोगायरा प्रोड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, द प्रोसेस नोन एज फ्रैगमेंटेशन। इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि व्हेन अ स्पाइरोगायरा मैच्योर्स बिकम्स big enough, it breaks into pieces and each piece grows into a new individual and this type of reproduction is known as fragmentation. ठीक है, दूसरा सवाल, is it asexual or sexual? It is asexual mode of reproduction. पहली बात, अगर तुमको कुछ नहीं पता तो ये तुमको जरूर पता होगा, ये तुम किस हेडिंग के अंदर पढ़ी थी? asexual mode of reproduction के अंदर। ठीक है, अगला जो सवाल है दैट इज इंपॉर्टेंट, why it is sexual और why it is asexual? इट इज एसेक्सुअल बिकॉज सेक्सुअल और एसेक्सुअल का जो सिंपल डिफरेंस था जो तुम लोग हम बताए थे कि एसेक्सुअल सेक्सुअल डिफरेंस है, इज इट यूनिपेरेंटल और इज इट बाई पेरेंटल? तो इसमें क्या दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे? नहीं। इसमें क्या गैमेट बना था? नहीं। क्या इसमें गैमेट का फ्यूजन हुआ था? नहीं। सो हाउ इज इट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? बिकॉज ओनली वन पेरेंट वॉज इन्वॉल्व, ब्रैकेट में लिखना यूनिपेरेंटल, नो गैमेट फॉर्मेशन टुक प्लेस, no gamete fusion took place. That is why we can call this type of reproduction an asexual mode of reproduction. लिख लो, हम यहाँ लिख देते हैं इस पॉइंट्स को। ये तीनों पॉइंट लिख लो। समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर घूमने पे ये क्वेश्चन आया तो कैसे घुमा सकता है तुमको। और ये जो बात बताया ना तुमको हम, ये 3 पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंटेशन के लिए नहीं है। अगर कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ तक कि अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी तुमको दिया हुआ है, क्योंकि हमको लगता है इससे ज़्यादा चांस है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के आने का, अगर वो भी आया और वो तुमसे पूछ दे व्हाई इट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये 3 पॉइंट के अलावा कहीं मत भटकना। तुमको कौन से 3 पॉइंट पर भटकना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें से? क्योंकि जब भी तुम 12th के एनसीईआरटी पढ़ेगी तो 12th के एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें भी है, उसका जो लाइन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड। इफ देयर आर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इट इज बाइपेरेंटल, इफ इट इज one parent involved it is uniparental, and the uniparental one is known as asexual mode of reproduction and the biparental is known as sexual mode of reproduction. यही लाइन है बहु, यही लाइन बायो का 12th का बायो का पहला चैप्टर में आपको मिलेगा। तो ये अगर ये आंसर तुम्हारा कोई टीचर काट रहा है, कुछ मत करना, मेरे पास आना, 12th का एनसीईआरटी का बुक हम तुमको दे के जाकर टीचर को दिखा देना। आप नहीं पढ़े थी, हम पढ़े हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? What is vegetative propagation? 2 advantages, 2 disadvantages। देखो इसमें क्या होगा, तुमको एडवांटेजेस बहुत आसानी से आ जाएगा। हमको नहीं लगता कि इसमें इतना बार तुम लोग को हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, एडवांटेजेस तुमको 5 भी बोल देंगे लिख देगा। डिसएडवांटेज सोच के समझ के लिखना। इसका डिसएडवांटेज अगर सही में किसी को नहीं पता तो नॉर्मल सा बात लगाओ कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज है वही डिसएडवांटेज इसका भी है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो कमी है, जिसके वजह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उससे प्रायर है, उससे बड़ा है, उससे सुपीरियर है, वही कमी किसका होगा? इसका होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, आपका टाइम ओवर हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। ध्यान से देखो, लिखा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ टाइप ऑफ, देखो पहली बात तुम लोग हम बोले थे जब भी कुछ लिखो तो पहले लिखो कि वो है क्या। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, किसमें होता है? प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस थ्रू द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स अदर देन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेम, लीफ, कुछ भी डाल दो। ये तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन का डेफिनेशन हो गया। दूसरा, 2 एडवांटेजेस, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस
रिप्रोड्यूस इन प्लांट्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, पहला। दूसरा क्या हो सकता है, इट हेल्प्स टू क्रिएट प्लांट्स और रिप्रोड्यूस प्लांट्स एट अ फास्टर रेट, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, पहला तुमको पता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा कमी है कि इट कैन नॉट क्रिएट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ सकता, तो पहला डिसएडवांटेज। इट कैन, हमको पता है कोई भी लिख दे, इट कैन नॉट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। सेकंड बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट इसका सेकंड पॉइंट है कि कंटिन्यूड सेल्फ रिप्रोडक्शन या कंटिन्यूड वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उस जो प्लांट है जिसको हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बार बार वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, उनमें दे लूज वाइगर मतलब द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन करने की अपना क्षमता जो है खोते रहते हैं, क्योंकि तुम एक स्टार्ट याद करो, अगर तुम स्टार्टिंग से लास्ट तक रेगुलर इसी तरह से करने लगोगे तो उसका जो अपना रिप्रोडक्शन करने कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ वाइगर, मतलब द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये दो पॉइंट तुमको इसमें लिखने पड़ेंगे, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एडवांटेज हम नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, हम सिर्फ डिसएडवांटेज लिख रहे हैं। नो जेनेटिक वेरिएशन created, second continued vegetative propagation can lead to loss of, वायर का मतलब पता चल गया ना जी, क्या है, ability to reproduce, VIGOUR, वाइगर। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is contraception name two methods how does the use of these have direct effect on health and प्रॉपर्टी क्यों लिख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ फैमिली, स्टेट 3 रीजंस। बोलना क्या चाहता है, देखो व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन डिफाइन करो, नेम 2 मेथड्स, 2 मेथड बताने, यहां तक बहुत आसान है। अगला है हाउ डज द यूज ऑफ दीज हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली, स्टेट 3 रीजन। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करने से फैमिली के हेल्थ और उसके वेलबींग को किस तरह इफेक्टेड होता है, तुमको 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। पहले तो देखो कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स करता क्या है, जो करता होगा उससे उस फैमिली को क्या बेनिफिट हो सकता है वो सोचो, तो तुमको इसका आंसर मिलेगा। इस तरह के एक और क्वेश्चन तुम लोग को हम बनवा चुके हैं, याद करो जब ये चैप्टर प्रैक्टिस करवा रहे थे उस दिन तुमसे हम 3 नहीं 5 पॉइंट लिखवाए थे, अगर उसमें से तुमको 3 पॉइंट भी याद है तो तुम इसमें लिख सकती हो। हो गया, कल लिखी राज। देखो पहला पॉइंट था कॉन्ट्रासेप्शन, सीधा हम कॉन्ट्रासेप्शन पहले समझाने से सीधा सीधी समझो, इस वर्ड को तोड़ो, क्या है कॉन्ट्रासेप्शन। सेप्शन came from the word conception. What is conception? The process of taking a baby, मतलब प्रेगनेंसी को होने देना और उससे बच्चा होना is conception. What is contraception? उसका अगेंस्ट
द मेथड्स और द प्रैक्टिसेस विच वी यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। 2 मेथड बता, तुम 10 बता, 10 होते भी नहीं है, 4 या 5 ही होते हैं। मैकेनिकल बता दो और केमिकल बता दो, या फिर आईयूडीज बता दो, या फिर सर्जिकल मेथड बता दो। प्रो टिप, थोड़ा सा इंप्रेशन करने के लिए मैकेनिकल लिखी ना, उसमें थोड़े एग्जांपल्स लिख दो, कॉन्डम्स लिख दो, सर्विकल कैप्स लिख दो। उसके बाद जहाँ हम बोलेंगे इसके बाद सर्जिकल लिखना, क्योंकि तुम्हारा टीचर सर्जिकल देखने का आदी है, तो उसमें लिख देना वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो तो तुम दोनों लिख के आ जाओ, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगला सवाल क्या है, नेम 2 मेथड्स हो गया। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट, देखो अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला, use of mechanical methods like condoms can prevent the chances of getting STDs। पहला प्रोटेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचोगे। दूसरा, प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग प्रोसेस फॉर अ वुमेन। अगर कोई विमेन तैयार नहीं है प्रेगनेंसी के लिए तो इट कैन एक्चुअली लीड टू सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज वेरी हाई। So if the woman is not ready for pregnancy yet, we can delay the pregnancy by having methods. Third, छोटा परिवार सुखी परिवार. You can actually write this. This is a slogan given by Indian government. So you can actually use this sentence. इससे तुमको marks मिलेगा. ये मत सोचना मजाक बोल रहे हैं. This is a slogan. So even in class 12th we have written this. So हम इसलिए बोल रहे हैं. तो छोटा परिवार सुखी परिवार, which means smaller family means मोर प्रॉस्परस फैमिली। अगर छोटा परिवार है तो यू कैन गिव बेटर केयर टू द चिल्ड्रन, यू कैन गिव देम बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, बेटर फूड। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट। अगला प्रश्न आपके श्याम पट पर ये रहा, ऐसा श्याम नहीं है, हरित पट है। ओहो, बहुत अच्छा सवाल। ये सब मेरे फेवरेट सवाल है। अगर हम एग्जामिनर होंगे ना, जिस दिन हम क्वेश्चन सेट कर दिया ना, मज़ा आ जाएगा। हम सोच रहे थे ऐसा कर दें, हम ही क्वेश्चन सेट, अगले बार सारा बच्चा मेरे पास पढ़ेगा, पैसा भी पैसा होगा। व्हाट इज प्लासेंटा? डिस्क्राइब इट्स 2 major functions। पहला सवाल है प्लासेंटा को डिफाइन करना है। जितना सवाल पूछेंगे सब में एक डेफिनेशन जरूर होगा, तैयार रहना इस बात के लिए। पहला सवाल, प्लासेंटा। सबसे पहले तो बच्चा को समझना पड़ेगा प्लासेंटा है क्या, कहाँ होगा। तो याद रखो प्लासेंटा का जिक्र पहली बार आया था इम्प्लांटेशन के बाद या इम्प्लांटेशन के दौरान। सो व्हाट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पार्ट फ्रॉम द फीटस एंड द मदर। फीटस के साइड से क्या होगा? कोरियोनिक विलाई। मदर के साइड से क्या होगा? ब्लड स्पेसेस। एंड द ब्लड स्पेसेस एंड कोरियोनिक विलाई टुगेदर फॉर्म्स द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द मदर एंड द फीटस। फंक्शन, 2 फंक्शन लिखना, सिंपल, बहुत आसान फंक्शन है। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर साइड टू द फीटस साइड। एंड सेकंड फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ वेस्ट। वेस्ट में क्या? CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द फीटस साइड टू द मदर साइड। बस। और अगर आपको थोड़ा हाई लेवल का आंसर लिखना तो इसमें आप ये भी कर सकते हो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी this placenta also secretes some hormones or it starts acting like endocrine gland। ये आपको 10th में नहीं मिलेगा, 12th का चैप्टर जब पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3, उसमें जब एक इधर फोटो बना होगा उसके लेफ्ट साइड में एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक HPL, HCG। अच्छा, एक बात तुम्हें कॉमन फन फैक्ट, तुम लोग को सीरियसली पता है कि जो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए जो किट्स आता है या फिर जो भी आता है वो कौन से हार्मोन को डिटेक्ट करता है? HPL नहीं, सिर्फ HCG। HCG का मतलब क्या होता है? कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। वो कौन रिलीज करता पता है जी? दैट इज व्हाई इट इज अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर प्रेगनेंसी।
क्योंकि प्लासेंटा तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या तो प्लासेंटा बनेगा, और अगर प्लासेंटा नहीं बना तो कभी एक्ससीजी बनेगा बॉडी में? नहीं। दैट इज सो इजी। लिखवा दिया ना सब कुछ। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं क्या है। ओहो, गुड सवाल। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में लिखो, ठीक है। दूसरा, सेल्फ पॉलिनेशन। ये व्हाइट का ही चल रहा है बीच बीच में। और क्यों लिख रहे हैं, लिखो ना। के बीच का what the hell? डिफरेंसेस। इजी क्वेश्चन है पर ध्यान से लिखना। देखो इधर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर पूछा, तो सिंपल से सवाल है 2 टाइप ऑफ फ्लावर कौन से है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, जिस फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, इधर स्टामन और द कार्पल। एग्जाम्पल, पैपाया और वाटरमेलन, दोनों खाने वाला फ्रूट्स, ठीक है। दूसरा, बाइसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर्स इन विच बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट इज स्टामन एंड कार्पल आर प्रेजेंट टुगेदर। उसके बाद एग्जाम्पल बताना, हिबिस्कुस बता देना, ठीक है, हिबिस्कस बता देना, काम तुम्हारा हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंसेस बिटवीन self-pollination and the cross-pollination. Self-pollination is a type of pollination in which the transfer of pollen grains takes place from anther to the stigma of the same flower, or anther to stigma of different flower of the same plant. Whereas cross-pollination means that the transfer of pollen grains from anther to stigma of the different flowers of the different plant. दूसरा, self-pollination doesn't create genetic variation, whereas cross pollination can create genetic variation. ये पॉइंट ऐड करो। पहला पॉइंट होगा डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट होगा जेनेटिक कॉम्बिनेशन या वेरिएशन। ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या करें इसके बाद? अच्छा क्वेश्चन है। इन सब पार्ट्स के फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। चुपचाप लिखो। सबके 2 फंक्शन लिखना है, सबके 2 फंक्शन, एक नहीं, कितने? 2 फंक्शन सबके लिखना है। चलो ध्यान से देखो। पहला है ओवरी। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स स्ट्रक्चर इन द फीमेल्स। किसी भी प्राइमरी सेक्स गोनाड का फंक्शन क्या? 2, प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट्स एग, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन्स। फीमेल्स में 2 होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फेलोपियन ट्यूब के 2 फंक्शन है, पहला ट्रांसफर ऑफ द गैमेट, सेकंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। थर्ड, यूट्रस। यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद एंडोमेट्रियम। सबसे पहले मायोमेट्रियम का लिख दो। इट helps in parturition or delivery of the baby after its complete development. Second, endometrium का, it is the site where implantation takes place. एक और लिख सकते हैं, the endometrium layer undergoes cyclic changes during the whole menstrual cycle. टूटना जुड़ना जो भी होता है किस लेयर में होता है? एंडोमेट्रियम में। सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखो। डिफरेंस बताना है फिजन फ्रैगमेंटेशन। एटलीस्ट
3, एटलीस्ट 3। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला और जो सबसे एक पॉइंट जो तुम लोग दिमाग में बिल्कुल नहीं लाया होगा, फिजन किस में होता है? एमीबा में। एमीबा किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है? मल्टीसेलुलर। उसके बाद इसका डेफिनेशन, व्हाट इज फिजन? Fission is a type of reproduction in which a mother cell divides into daughter cells, two daughter cells or equal daughter cells. It is of two types, binary fission and fragmentation is a type of production in which an organism grows, matures and divides into pieces and each pieces gets developed into new organism. एग्जाम्पल लिख देना नीचे अच्छे से, अमीबा, प्लानेरिया, फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा। हो गया, 3 नंबर मिल गया। हाँ, नेम द, ये थोड़ा सा बाहर से पर तुमको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये सीबीएसई में आ चुका हमको लगता है, इसीलिए। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार एंड, तुमको पता है हाउ इट reproduces. क्वेश्चन है, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार एंड हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार इज LEISH leishmania, reproduces by the method of asexual mode of reproduction, that is binary fission। देखो एक बात सिंपल से बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, राइट, सॉरी, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, लिखो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म्स एंड द एग्स ऑफ ह्यूमन। हाँ, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, ये क्वेश्चन हम एक बार टेस्ट में दे चुके हैं, पर ये क्वेश्चन मेरे लिए यहां इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका बाद वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंस, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंस। क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है, हमको पता है उतना तुम लोग कोई भी लिख देगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म्स एंड द एग्स ऑफ ह्यूमंस। सेकंड इज राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंस। देखो डिफरेंसेस पूछ रहा है, डिफरेंसेस कुछ भी लिख सकते हो। पहला, सबसे पहला डिफरेंस है कि जो एग होता है वो रिलेटिवली स्पर्म से बड़ा होता है। दूसरा, जो तुम लोग बोल रहे थे, स्पर्म इज मोटाइल एंड एग इज नॉन मोटाइल, जो भी लिखना लिखो। बट द मेन डिफरेंस हियर इज द स्पर्म कंटेन्स 2 सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज X एंड Y, whereas the egg contains only 1 type of sex chromosome, पर नंबर बदला नहीं है, नंबर 2 ही है, that is X and X. The importance of this difference is that it helps in what? Deciding the sex of the children. If the male gives an X and the female also gives X, because female has no other options other than giving X, so it makes a female child. But if the male gives Y and the female gives X, it results in the formation of a male child. So in determination of the sex of the children, this difference is very 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 important. And इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ये क्लास प्लस ये सीरीज़ जो इतना दिन से चला वो एक समापन की ओर आया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड गिविंग योर सपोर्ट फ्रॉम द beginning when I started teaching. I know I'm not that very good teacher because I'm doing this for the first time, right? So I'm also learning from you guys, your doubts, your problems, and thanks for being with me through the journey of this 3 months. I really enjoyed it, and this is the last video of this session, the normal video of this session. After this, our crash course is going to begin, and I'll be there also. If you want to join the crash course also, you people can join it. There's no issue with it. There we'll be doing the whole syllabus in 45 days with practice, with exam practice, with question practice, with everything, like whatever you need to score 95 plus out of 100, right? That is, or somebody even if you want to score 98% out of 100% the whole 10th, that is possible. You people can join, and first and the foremost thing, please subscribe, share the video so that more and more people can see this video and get benefited from this, right? There's no other reason of making these videos
freely available on the internet rather than helping students, because this is the time the students get panic of the examination and they need solutions for them. So this video might help for them, but if you need the extended care, the extended access to the materials and the questions, you people can join us in the crash course. Crash course is going to begin from the Monday, so be prepared for that. Register faster and let's do it. We can do it, we can crack it. It's very easy. It's just from here. You have to accept that you can do it and you will do it.